Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Students, today the date is 4th September 2020 and the day is Friday. And today our topic is to identify pronoun. Our topic is to identify pronoun. This is the book exercise of unit number 3, media and its impact. Identify personal, possessive, reflexive and indefinite pronouns. पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, पर्सनल एंड इनडेफिनेट प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करना है और इन सेंटेंसेस को बताना है कि ये कौन कौन से प्रोनाउंस के सेंटेंसेस हैं। लेकिन उससे पहले इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट इज़ प्रोनाउन. इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द प्रोनाउन, about its types. After then, we will be able to identify these sentences. Is it clear? So let us define the pronoun. Pronoun. A pronoun is a word that is used in the place of noun. A pronoun is a word that is used in the place of noun. Pronouns mean isme zamir. Pronoun means isme zamir. इसमें ज़मीर एक ऐसा लफ्ज़ है दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. नाउन मीन्स इसम. एक ऐसा लफ्ज़, ऐसा इसमें ज़मीर जो कि इसम की जगह इस्तेमाल होता है, उसको इसमें ज़मीर बोलते हैं. एग्जाम्पल, अहमद गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अहमद इज़ द नाउन. ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली. ही इंडिकेटिंग द अहमद. ही इज़ द प्रोनाउन. ही इज़ द प्रोनाउन which is indicating the Ahmad that he gets up early in the morning, he goes to school regularly. In other words, we can say that we use a pronoun when we do not repeat noun in a sentence or in a longer piece of writing. It means we use pronoun to avoid the repetition of noun in the same sentence again and again. एक जुमले में नाउन को बार बार दोहराने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. क्लियर? एग्जाम्पल में देखें, असलम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू कराची. असलम इज़ द नाउन, ही इज़ द प्रोनाउन. वी कैन नॉट मेक द सेंटेंस इन दिस वे लाइक असलम टोल्ड मी दैट असलम वाज गोइंग टू कराची. इट इज़ रॉन्ग सेंटेंस. Aslam told me that he was going to Karachi. This is correct sentence, and in this sentence he is the pronoun. Clear? Kinds of pronoun. Pronoun की types कितनी है? Personal pronoun, reflexive pronoun, indefinite pronoun, possessive pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun and reciprocal pronoun. Clear? अब हमने इसकी फर्स्ट 4 टाइप्स करनी है. कौन सी टाइप्स? फर्स्ट 4 टाइप्स: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनेट एंड पोजेसिव. वी हैव टू डिफाइन these 4 types. After defining these types, we will be able to identify the sentence given in the textbooks. Is it clear? So let us define these types. Personal pronoun. A personal pronoun is a pronoun that is associated primarily with a particular person in the grammatical sense. पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो ग्रामेटिकल सेंस में किसी ख़ास शख्स से बुनियादी तौर पर वाबस्ता होता है. क्लियर? कि किसी शख्स को जाहिर करता है, शख्स को शो करता है. क्लियर? पर्सन्स अब 3 टाइप्स के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जो प्रोनाउंस हैं वही पर्सनल प्रोनाउंस हैं. फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, आर, अस. सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, यू. थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट. क्लियर? ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं. एग्जाम्पल में देखें, सलमान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. ही इज़ द पर्सनल प्रोनाउन. ही इज़ द पर्सनल प्रोनाउन. Possessive pronoun. Possessive, the very word shows the possession of someone, means कि किसी की मलकियत को जाहिर करना. A pronoun that indicates possession of someone
किसी भी शख्स की मलकियत को शो करना पोजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई बैग, माई इज़ द पोजेसिव प्रोनाउन। ये मेरी बुक है, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है। इट इज़ योर बैग, योर इज़ आल्सो पोजेसिव प्रोनाउन, ये तुम्हारा बैग है। माई एंड योर आर शोइंग द पोसेशन ऑफ समवन। क्लियर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, they are called reflexive pronouns when the action done by the subject turns back or reflects upon the subject. Clear? Reflexive pronouns are the pronouns in which the action reflects or turns back to the doer himself or itself or herself. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनमें जो एक्शन होता है वो डूवर की तरफ वापस पलट कर आता है। एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, I hurt myself. Myself is the reflexive pronoun. Myself is the reflexive pronoun. She hurt yourself. She hurt herself. Herself is the reflexive pronoun. The pronouns in which the action reflects or turns back to the doer are called reflexive pronouns. Clear? Indefinite pronouns. A pronoun that does not refer to any person, amount or thing in particular. A pronoun एक ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी भी शख्स को रेफर टू एनी पर्सन, मकदार को या किसी भी चीज़ को ख़ास तौर पर जाहिर नहीं करता, किसी का हवाला नहीं देता, उसको इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस डज नॉट टेल्स द एग्जैक्ट और पार्टिकुलर about the particular person, place or thing. Clear? Such as anything, someone, something, anyone, everyone, each, few, many, someone, etc. These are called indefinite pronouns. Clear? Example, there was nobody in the room. There was nobody in the room. इन pronouns में किसी भी चीज़ की तादाद मुअय्यन नहीं होती। क्लियर? सिंपल वर्ड्स में आप यूँ कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की तादाद मुअय्यन नहीं होती। तो ये थी 4 टाइप्स जो हमने डिफ़ाइन की। अब इसके बाद हम इसकी बुक एक्सरसाइज पे चलते हैं और वहाँ पे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज़ माई बुक, माई इज़ शोइंग द पोसेशन, सो दिस इज़ पोजेसिव प्रोनाउन। सलमान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ द पर्सनल प्रोनाउन। यू विल हर्ट योर सेल्फ इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, नोबडी इज़ द इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट एक्टिविटी है आइडेंटिफाई प्रोनाउन एरर्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। प्रोनाउन एरर्स इनमें दी गई हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, इन सेंटेंसेस को दोबारा राइट करना है। ये चंद एक प्रोनाउन एरर्स थी जो मैंने लेड पेंसिल से सॉल्व की हैं। इनको आप अच्छी तरह से देख लें अपनी नीट और अपनी टेक्स्ट बुक्स पर आपने इनको सॉल्व करना है। क्लियर? प्रोनाउंस विद काइंड्स एंड विद ऑल काइंड्स और 4 टाइप्स जो हमने डिफ़ाइन किए वो सारी आपने अपनी नीट नोटबुक्स पे राइट करना है। क्लियर? ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।